I started my recording so that you all will know. Okay. Now Tanvi is here from the here. You want to flex? Yeah. See, how was the wedding, Tanvi? Is it over? How was the wedding? Wedding? Yeah, you went to attend the wedding, right? No, miss, not me. Tanvi Khere. Right. I thought you. No. Okay. Now let me connect my device and then we will start with the wonderful session. Firstly, I will give you what I will give you, the tricks I will give you, and after some of the tricks and that all, what we will start? We will start thing that is of test. Yeah. Let me open my tab here. Just let me know, is it visible? Yes, ma'am. Yeah. Now let's start. Okay. Now give the heading. Open your books. Uh, Poetry. अरे ते ऐक ना मी ते हे Jata, have you shared the homework? Yeah, I got your homework right now. Yeah. I will check it later and I will give you the feedback how you are done. Okay, now let me tell me which are you able to see my screen? Yes, ma'am. Is it a Yes, whiteboard? Yes, ma'am. Yeah. ma'am. Then we will start. Teacher, Everyone is there? Yes, Irish. my homework is done. Very good. बच्चे मैंने क्या बोला था आपको या Yeah. Now, you have to share your homework on the office number. Okay? Yeah. Ma'am, Now, Irish, you are there. Yes, Tanvi? ma'am, what did you told the channel name yesterday? It's RS Education Competitive Hub. Okay, ma'am. RS Competitive Hub. You can search for that. Yeah. Come on, everyone, open your notebooks. सब लोग notebook open कर लो. Yeah. Now, हमने क्या पढ़ा था? Firstly, fractions we had seen. Fractions के बाद में what we had seen? Types of fractions. उसके बाद में conversions of it. Then tricks of it, traps of it. उसके बाद में addition, subtraction, tricks of addition and subtraction, and then traps of addition and subtraction. उसके बाद में multiplication. Multiplication में like fraction, unlike fraction, I mean, that is also covered in this one. Addition part, right? And in multiplication, we had seen how to solve the multiplication. In division, we see the reciprocals, right?
रेसिप्रोकल देखा था, उसके बाद में ट्रैप देखा था, एक स्पीड ट्रिक देखी थी दैट वी हैव टू डायरेक्टली कैंसिल आउट, क्रॉस में कैंसिलेशन करते हैं हम, राइट? नाउ लेट मी सी, सो दिस इज ऑल अबाउट कि भाई आप आज तक कितना हुआ हमारा, या तन्वेश, स्वरा, आई वॉन्ट योर कैमराज ऑन बच्चे। निरंजन, आपका भी मुझे कैमरा ऑन चाहिए, या एंड गिव द नेक्स्ट हेडिंग फॉर, या चलो नेक्स्ट हेडिंग ले लो, मल्टी स्टेप, या मल्टी स्टेप वर्ड प्रॉब्लम्स। जब भी आपको वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे, मतलब आज के इसमें आपको वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे, ओके, मल्टी स्टेप वर्ड प्रॉब्लम्स। तो फिर मल्टी स्टेप वर्ड प्रॉब्लम्स मतलब क्या होता है? व्हाट वी आर हैविंग अ मल्टी स्टेप वर्ड प्रॉब्लम इन इट मीन्स फर्स्टली आइडेंटिफाई करो। मल्टी स्टेप हमने पहले भी देखा था, मल्टी स्टेप वर्ड प्रॉब्लम्स मतलब क्या होता है? उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, उसमें आपको क्या क्या पूछा जाता है? Whatever things we are given that they will ask you. मीन्स इन एक स्टेप में आंसर नहीं आएगा, आपको बहुत सारे स्टेप्स करने पड़ेंगे। पहले करो उसका कन्वर्जन, उसके बाद में करो उसका एडिशन, फिर करो उसका सब्ट्रैक्शन, लाइक दैट काइंड ऑफ थिंग। मीन्स वी हैव टू परफॉर्म अ लॉट काइंड ऑफ थिंग। फर्स्टली आइडेंटिफाई कि भाई वो फ्रैक्शन होल है क्या। फर्स्टली आइडेंटिफाई द फ्रैक्शंस ऑफ होल, मतलब whether the whole fraction is given, whether the mixed fraction is given, which kind of fraction is given to you. Then track on the then track the remaining part. Okay. उसके बाद में पहले फ्रैक्शंस को देखो भाई किस हिसाब से कैसे दी है। उसके बाद अभी क्लास शुरू है क्या? यस, अभी क्लास शुरू हुई है धर्मेश। रिमेनिंग क्वांटिटीज अभी मैं आपको स्टार्टिंग का दे रही हूँ कि मल्टी स्टेप वर्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है धर्मेश। उसके बाद मैं कंटिन्यू द टेस्ट, ओके? म्यूट योरसेल्फ। Ma'am, यस, ma'am, how many questions are in the test? मैक्सिमम 25, okay? Write fastly because we have to solve the test also. Ma'am, Okay. to our house, the guests were coming. Sorry, आप क्या बोल रहे हो? Ma'am, the guests are coming here here. नहीं मतलब सीना बरोबर सारा रास्ता घर पे केमन करता क्या हो रहा है बच्चे? Ma'am, in our house, the guests are coming, and I here is range problem. Okay, then mute yourself and continue the video. Mute yourself and continue the video, then you will not have any kind of things. Yeah? मैम Yes? मैम ये अभी कौन सा लेक्चर चल रहा है? बच्चे मेरा रेगुलर ही चल रहा है, क्योंकि आगे वाला है। नहीं मैम, अभी अब कौन सा चैप्टर, मतलब कौन सा ये मीनिंग का है ये? बच्चे ये हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा था? फ्रैक्शनल का, राइट? तो फिर ये फ्रैक्शनल का जो आपका कल का हुआ है उसी का आगे का पार्ट, ओके? यहाँ पर क्या होता है, मल्टी स्टेप वर्ड प्रॉब्लम्स में क्या होता है, डोंट गेट कंफ्यूज कि भाई ये क्या है वो क्या है, ओके? जस्ट सी कि भाई मल्टी स्टेप वर्ड प्रॉब्लम है, उसमें क्या करना होता है, फर्स्टली आपको फ्रैक्शनल नंबर में भी फ्रैक्शंस डायरेक्टली नहीं देते। कभी कभी जो मिक्स फ्रैक्शंस होते हैं वो डायरेक्टली फॉर्म करने के लिए कहते हैं, लेकिन बाकी के जो क्वेश्चंस आते हैं वो वर्ड प्रॉब्लम में पूछे जाते हैं बच्चों, ओके? अदर रिमेनिंग क्वेश्चंस दे आस्क यू इन द वर्ड प्रॉब्लम। आपको डायरेक्टली फ्रैक्शन नहीं दिया जाता, आपको वर्ड प्रॉब्लम में फ्रैक्शंस दिए जाते हैं। इसीलिए पहले आइडेंटिफाई करो कि भाई वो क्या दिया है, फ्रैक्शन किस टाइप का है, वेदर इट इज अ होल फ्रैक्शन ऑफ व्हाट। देन ट्रैक द रिमेनिंग क्वांटिटीज कि भाई रिमेनिंग में क्या क्या आ रहा है। उसके बाद में भाई ये कर दो कि इसमें क्या आता है, इस वर्ड प्रॉब्लम में क्या पूछा है, इंटरप्रेट इट, एवरीथिंग यू हैव टू इंटरप्रेट इट। मीन्स वेदर देयर आई हैव आस्क्ड यू द स्टोरेज कैपेसिटीज, बहुत सारे मल्टीपल ऑपरेशंस पूछे हैं क्या स्टेप्स में, लाइक दैट काइंड ऑफ थिंग, ओके? ये मल्टी स्टेप होता है कि बहुत सारे आपको स्टेप्स पूछे जाते हैं यार, ओके? नाउ गिव द हेडिंग फॉर द ट्रैप कि भाई ट्रैप क्या होता है। फर्स्ट में आपको यहाँ पर एक ही ट्रैप होता है, दैट इज ऑफ रिमेनिंग ट्रैप। रिमेनिंग वाला ट्रैप क्या पूछते हैं आपको
कि भाई एक ही चीज वो आपको पूछते हैं, दैट इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड। ये वाला ट्रैप बहुत मोस्ट फ्रिक्वेंट होता है। ओके, ये वाला ट्रैप मोस्ट फ्रिक्वेंट होता है। स्कॉलरशिप वालों को कभी कभी ये आता है रिमेनिंग वाला ट्रैप, लेकिन मोस्ट फ्रिक्वेंटली नवोदय वालों को आता है। ओके, मतलब कैसे, ये देखो यहाँ पर मैं आपको एक ये दे रही हूँ, एक क्वेश्चन का फॉर्म दे रही हूँ। अ मैन इज देयर एंड ही स्पेंड्स, ओके, ही स्पेंड्स 1/3 ऑफ हिज मनी, 1/3 ऑफ हिज मनी। मतलब एक आदमी है और वो क्या करता है, अपना 1/3 मनी जो है वो स्पेंड करता है किस चीज पर, फूड पर। एंड वो अपना 1/4 ऑफ रिमेनिंग मनी जो है, 1/4 ऑफ रिमेनिंग पार्ट जो होता है ना, वो किसने दे, वो खर्च करता है ऑन रेंट। लाइक दिस काइंड ऑफ ट्रैप दे विल गिव यू। मतलब एक आदमी है जो 1/3 मनी है उसका, जो भी वो ये करता है, वो 1/3 मनी फूड पे स्पेंड करता है, और जो रिमेनिंग 1/4 पार्ट है उसका मनी का वो रेंट पे करता है। तो फिर यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि भाई क्वेश्चन ही नहीं देखते, डायरेक्टली दे गो फॉर द जंप फॉर द क्वेश्चन। एंड यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ब्लाइंडली स्टूडेंट्स व्हाट दे डू, स्टूडेंट्स ब्लाइंडली गो फॉर द एडिशन कि भाई उसका मनी कितना, रिमेनिंग पार्ट ऑफ मनी क्या है, एंड डायरेक्टली वो क्या करते हैं, 1/3 + 1/4। डायरेक्टली वो इस कैलकुलेशन पे, इस कंक्लूजन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन बिना देखे, बिना सेकंड वाला फ्रैक्शन देखे, बिना कुछ करे ही वो होल फ्रैक्शन के बगैर ही क्या कर जाता है, इस कंक्लूजन पे जंप होते हैं कि भाई हमें क्या किया है, उसने एक उसका 1/3 अमाउंट दिया है, 1/4 अमाउंट वो अपना रेंट पे खर्च करता है, मतलब जितना भी मनी बचा होगा वो क्या होगा, 1/3 + 1/4 होगा। लेकिन ये तो गलत है, राइट? यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स इग्नोरिंग द थिंग, स्टूडेंट्स ऑलवेज इग्नोर दैट जो भी सेकेंड फ्रैक्शन है, कि भाई जो भी आपको सेकेंड फ्रैक्शन जो होता है वो अप्लाइज, दैट अप्लाइज ओनली टू द लेफ्ट, टू द लेफ्ट ओवर आफ्टर द एक्सपेंसेस। ओके, लेफ्ट ओवर आफ्टर द एक्सपेंसेस। मतलब क्या करते हैं बच्चे, कभी यहाँ पर जब भी आपको सेकंड फ्रैक्शन दिया जाता है ना, तभी भी वो सिर्फ उसी पार्ट पे अप्लाई होता है जब आपका कुछ लेफ्ट ओवर आफ्टर एक्सपेंसेस, मतलब पूरा एक्सपेंसेस खर्च करने के बाद जो भी आपका अमाउंट आपके पास में बच रहा है, दैट टाइम ओनली दे गिव यू द सेकंड fraction, and that's how you are not supposed to jump on direct conclusions। ऐसे डायरेक्ट कंक्लूजन पे नहीं जाना है कि भाई एक अमाउंट दी है, दूसरी अमाउंट ऐसे दी है, टोटल में अगर पूछा, देन यू आर नॉट सपोज टू डायरेक्टली जंप ऑन द कंक्लूजन। ओके, ये होता है ट्रैप कि भाई ऐसे ट्रैप में नहीं फंसना है। कभी भी रिमेनिंग पार्ट दिया, देन you are not supposed to go for the direct conclusion। पहले जैसा जैसा सेंटेंस फॉर्म किया है वैसा वैसा क्या करो, कहीं पर तो नोट डाउन करो कि भाई इसने क्या पूछा, ये अब क्या करने वाला है, हर एक स्टेप में क्या होने वाला है। ओके, लाइक दैट काइंड ऑफ थिंग यू हैव टू डू। ओके, नाउ राइट डाउन what I will give you, yeah, I will give you a speed trip on these kind of problems कि भाई ऐसे प्रॉब्लम होते हैं। मैम, यस, मैम मेरे ऊपर का रह गया। टेल हियर, इज इट ओके? या तो फिर यहाँ पर क्या करते हैं हम, एक मेथड वी आर यूजिंग, दैट इज ऑफ बॉक्स डायग्राम मेथड, बॉक्स डायग्राम मेथड। यस, मैम मुझे ऊपर का थोड़ा सा डाउट है। या इसका डाउट मैं आपको, तनवीश, ये जो भी है ना, ये डाउट आपको एग्जाम्पल में समझ में आएगा, एंड इसका एग्जाम्पल मैं नीचे कवर करती हूँ। ओके, ओके,
in speed trick I'm covering this example. ये ट्रैप में बच्चे कैसे फंसते हैं ये नीचे हम देखेंगे. ओके, सो राइट इट डाउन फास्टली कि भाई स्पीड ट्रिक में बॉक्स मेथड कैसे यूजफुल होती है. जब भी आपको 2 फ्रैक्शंस या फिर 3 फ्रैक्शन वर्ड प्रॉब्लम में दिए जाते हैं, देन हाउ यू हैव टू अपीयर फॉर इट. ओके, या नाउ सी फॉर द रिमेनिंग प्रॉब्लम्स, मतलब जब भी आपके वर्ड प्रॉब्लम में रिमेनिंग ये वर्ड आएगा, मार्क दिस वर्ड, जब भी आपके वर्ड प्रॉब्लम में रिमेनिंग ये वर्ड आएगा तब वो प्रॉब्लम स्पेशल केस प्रॉब्लम्स होते हैं. दिस आर स्पेशल केस प्रॉब्लम्स. वहां पर आपको ड्रॉ करना है एक ग्रिड. ग्रिड मतलब बॉक्स. ग्रिड मतलब सिंपली क्या, बॉक्सेस यू हैव टू ड्रॉ. एंड कैसे, let's see with an example. Okay, let's see with an example. Write down a question. Example लिख लो. Example में question लिख लो. That if a tank is, see, if a tank is, if a tank is 3 by 5 full. Okay, 3 by 5 full. Then the remaining, see, the remaining 2, Hello, ma'am. yes, मैम हमारे घर पे ना गेस्ट आए हैं, मुझे लीव होना पड़ेगा. okay, you can, थैंक यू मैम. yeah. Now यहाँ पर क्या करना पड़ता है, the remaining, yeah, the remaining 2, yeah, ये एग्जाम्पल है, ये क्वेश्चन के फॉर्म में ही मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. ओके, if a tank is 3 by 5 full, the remaining 2 unshaded part, the remaining 2 unshaded blocks represent the empty space where you are not supposed to draw here. Okay, empty space, and here the tank requires 40 liters more to fill, 40 liters more to fill than see 40 liters more to fill if 3 shaded blocks give you the amount of tank filled. ओके, ये क्या है, ये क्वेश्चन है. ओके, ये आपको क्या दिया है, ये आपको क्वेश्चन दिया है. ओके, अब यहाँ पर देखो आप कैसे सॉल्व करोगे इस टाइप का क्वेश्चन. यू फर्स्टली सी, ओके, व्हाट यू विल सी. फर्स्टली यहाँ पर देखो कि टैंक दिया है. टैंक कैसे शेप में होता है, आपने घर की टंकी देखी होगी, राइट. घर की टंकी ऐसे शेप में होती है, राइट, लाइक दिस काइंड ऑफ शेप, राइट. मैम, यस सन्नी. ma'am, just because of that color means from where you are taking the different types of color shade means that because of that I'm not able to see the
right-sided words. Okay. Yeah. Read, Aman. Is it okay? Yes, ma'am. See, a tank is there. टैंक में क्या दिया है 3/5 फुल. टैंक कितनी फुल है 3/5 फुल है, राइट. तो फिर आप क्या करोगे 5 ये करोगे 5 ब्लॉक्स ड्रॉ करोगे. काउंटेड 1 2 ओके 1 2 3 4 5 राइट. आई विल चेंज द कलर फॉर यू. एक टैंक है, सपोज टैंक किससे भरी भरी हुई होती है पानी से, राइट. तो फिर ये कितना पानी फुल है 3/5. ये क्या है फुल है. मतलब 5 में से कितनी ये ब्लॉक्स फिल करेंगे आप पानी से 3 ब्लॉक्स. हो गए 3 ब्लॉक्स आपके फुल. मतलब ये क्या हो गया सपोज मान लो कि भाई ये टैंक के 3 ब्लॉक्स फुल है. मतलब गिव दिस टैंक फर्स्ट सेकेंड थर्ड. आपने 3 ब्लॉक्स शेयर कर दिया. मतलब एक टैंक 3/5 मतलब भरा हुआ है. अब कितना पानी बचा हुआ है भरना टैंक का. ये 2 ब्लॉक्स बचे हुए हैं, राइट. दिस 2 ब्लॉक्स आर रिमेनिंग, राइट. तो फिर अभी क्या दिया है कि भाई टैंक में अभी 40 लीटर पानी और जाना है. मतलब ये जब 40 लीटर पानी इसमें जब 40 लीटर पानी जाएगा तब ये टैंक होगा फुल. मीन्स आपका 2 ब्लॉक्स जो रिमेनिंग है, जो 2 ब्लॉक्स रिमेनिंग है कितना होता है वो 40 लीटर का है. अगर 2 ब्लॉक 40 लीटर का होता है तो फिर एक ब्लॉक कितने का हुआ. एक ब्लॉक कितने का हुआ 20 liters. 40 डिवाइड बाई 2 करो. व्हाट इज 40 डिवाइड बाई 2 आंसर. 2 ब्लॉक्स मिलाकर 40 बनते हैं, राइट. तो फिर 40 को 2 से डिवाइड करो. 80. मैंने मल्टीप्लाई करने के लिए बोला आदेश डिवाइड करो. डिवाइड मीन्स व्हाट यू Ma'am, विल 20. स्टेप करोगे. 20. 2 divided by 40. 2 2s are 4 minus 4 right 0. 0 यहाँ पर आएगा 0 नीचे आएगा 0 minus 0 0. या फिर सिंपली स्लैशिंग मेथड से 2 1s are 2 2 2s are 4 0. क्या आ जाएगा 20. मतलब 2 ब्लॉक्स मतलब क्या होता है बच्चे एक ब्लॉक की एडिशन प्लस दूसरे ब्लॉक की एडिशन. एक ब्लॉक में 20 लीटर है और दूसरे भी ब्लॉक में 20 लीटर है. दोनों मिलाकर 40 लीटर आया. ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन चेक करो. एक और एक को 2 मिलाकर जब आप ये करोगे मतलब क्या हो रहा है 2 ब्लॉक के एक ब्लॉक में कितनी कैपेसिटी लीटर्स की कैपेसिटी आती है 20 लीटर्स. मतलब अब टैंक की टोटल कैपेसिटी कितनी होगी. या व्हाट विल बी द टोटल कैपेसिटी. 5 ब्लॉक है 5 जिसमें 5 ब्लॉक है हमारे पास. अगर एक ब्लॉक की कैपेसिटी आपकी 20 लीटर आती है तो फिर 5 ब्लॉक्स मिलाकर कितना, क्योंकि 5 ब्लॉक्स को मिलाकर एक टैंक बनता है, राइट. 5 blocks is equal to 1 tank. अगर एक ब्लॉक में आपने अभी फाइंड करा एक ब्लॉक में अगर 20 लीटर जाता है तो फिर 5 ब्लॉक में कितना लीटर आएगा 20 into 5. What will be the answer? Yeah. Yes. Who wants to try? 20 into 5 कितना आएगा. अगर एक ब्लॉक में 20 लीटर होता है तो फिर 5 ब्लॉक में कितना. सिंपली 20 into 5. 100. Yeah. What will be the answer? Who wants to try? 100. 100, right? Then simply क्या करोगे. Yeah. Simply क्या करोगे 0 as it is लिखोगे 5 2s are 10. आ जाएगा आपका 100 लीटर. सिंपली आपके ब्लॉक की कैपेसिटी कितनी है. या आपके पूरे टैंक की कैपेसिटी कितनी है 100 लीटर. सो दिस इज हाउ अ क्वेश्चन विल आस्क. जब भी आपको रिमेनिंग पार्ट वाले क्वेश्चन आएंगे तो क्या करो सिंपली एक
फिगर, कोई भी फिगर ड्रॉ करो और वहां पर जितना अमाउंट ऑफ फ्रैक्शन दिया है उतनी ब्लॉक्स ड्रॉ और ब्लॉक डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या करो, सॉल्व करो. सो इट विल बी वेरी इजी. चलो एक और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे. या वन मोर क्वेश्चन. अगर स्टूडेंट इज देयर, या स्टार्ट राइटिंग विथ मी. A student is there and he reads 2/5 of a book. मतलब एक बुक का 2/5 पार्ट उसने क्या किया है, रीड किया है ऑन सैटरडे. ऑन सैटरडे इन्होंने यहाँ पर डे भी दिया है कि भाई इन्होंने कब रीड किया है. एंड जो 1/3 पार्ट है ऑफ द बुक, उन्होंने 1/3 पार्ट ऑफ द बुक कवर किया ऑन संडे. ऑन संडे अगर उन्होंने दिया है कि इफ 40 pages are still left, yeah, still left unreaded, मतलब यहाँ पर भी सैटरडे को रीड करने के बाद, संडे को रीड करने के बाद भी उनके कितने पेजेस बचे रीड करने के लिए, 40 pages. Then how many total pages? How many total pages are there in a book? Pages are there in a book. मतलब एक बुक में ऐसे टोटल कितने पेजेस है जिसमें से उन्होंने 40 पेजेस अभी भी रीड नहीं किए और जिसके 2/5 पार्ट उन्होंने सैटरडे में रीड किया है एंड 1/3 पार्ट उसका किसने रीड किया है, संडे में. तो फिर आपको टोटल क्या करना है, बुक ये करना है. तो फिर आप सिंपली क्या करोगे, पहले आंसर में क्या लिखोगे कि भाई पहले ये पार्ट होगा आपका कि भाई बुक कितनी रीड की है उन्होंने, बुक रीड कितनी की है टोटल. अनरीडेड पार्ट हमें दिया है डायरेक्टली कि भाई 40 पेजेस है जो उन्होंने रीड नहीं करे. तो फिर कितना बुक पहले रीड किया है वो पहले फाइंड करो. कितना रीड किया है, जो भी बुक उन्होंने सैटरडे को रीड करी है उसको मिला दो संडे के साथ. यस, तो सैटरडे को रीड किया है उसको मिला दो संडे के साथ. मतलब सैटरडे को किया कितना रीड किया है, 2/5 अमाउंट ऑफ बुक. एंड संडे को कितना किया है, 1/3 अमाउंट ऑफ बुक. एडिशन क्या करो अब इसकी. या हाउ यू विल डू द एडिशन, यू विल सिंपली डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इन द न्यूमरेटर. डिनोमिनेटर में क्या करोगे, दोनों डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लीकेशन करोगे. मीन्स हाउ, 2 into 3 प्लस 5 into 1, करेक्ट. ऐसा ही मल्टीप्लीकेशन करते हो ना, डिवाइड बाय 5 into 3, करेक्ट. तो फिर क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, डिवाइडेड बाय 5 3 जा 15, 6 प्लस 5 11, 11 by 15. मतलब आपका रीड करना कितना रह गया, रीड कितना किया है उन्होंने, हाउ मच अमाउंट ऑफ बुक एक स्टूडेंट ने रीड किया है, 11 by 15 अमाउंट ऑफ बुक स्टूडेंट ने रीड करा है. स्टूडेंट ने बुक कितना रीड किया है, 11 by 15. अब रीड इतना किया है तो फिर अनरीडेड पार्ट कितना है, मतलब बुक कितनी बची है, बुक लेफ्ट टू रीड कितनी, लेफ्ट टू रीड कितनी बची है. या हाउ मच अमाउंट ऑफ बुक इज, ये एक पूरा बुक है मतलब 1 करोगे, 1 minus 11 by 15 करोगे. 1 क्यों करोगे, क्योंकि कितनी बुक दी है यहाँ पे, ओनली 1. सो दैट्स हाउ यू विल गो फॉर द 1. आपको पता है कभी भी होल नंबर आता है तो फिर होल नंबर के नीचे क्या होता है, ऑलवेज 1. सो दैट्स वाई क्या आएगा, फिर से इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में फिर से डिनोमिनेटर का ये करोगे. देन व्हाट यू गेट, 15 into 1 15 minus 11 into 1 divided by 15 into 1, करेक्ट. क्या आ जाएगा, 15 minus 11 by 15. 15 में से 11 माइनस करोगे क्या आता है, 4 by 15, राइट. मतलब बुक रीड की है 11 by 15 और जो बुक अभी भी रीड नहीं करी है वो क्या है, 4 by 15, राइट. अब ये देखो एक बुक में से उन्होंने 4 by 15 पेजेस की बुक रीड नहीं करी और फिर भी उन्होंने हमें क्या दिया था,
एक टोटल अमाउंट ऑफ बुक दी थी, राइट? एक टोटल अमाउंट ऑफ ये दिया था कि भाई कितनी पेजेस उन्होंने रीड नहीं करे, राइट? तो फिर 415 पार्ट ऑफ बुक जो अनरीडेड है, जो कि अनरीडेड है, उसके कितने पेजेस होते हैं? 40 पेजेस। आपको पता है कि भाई एक साइड में मल्टीप्लिकेशन होता है तो फिर वो दूसरे साइड में जब जाता है वो क्या होता है? डिवाइड, राइट? हमें पता है, हमें दूसरा भी रूल पता है कि भाई 40 क्या है? एक नंबर है। कभी भी एक नंबर होता है तो फिर उसके नीचे डिवाइड में कौन सी टर्म होती है? ऑलवेज 1, राइट? तो फिर यहाँ पर 415 क्या आ जाएगा? 415 यहाँ से बाहर जाएगा एंड बुक अनरीडेड जो होगी ना, या बुक जो अनरीडेड होंगे वो क्या होंगे? अनरीडेड पेजेस जो होंगे आपके कितने होंगे? या ऑफ अ बुक, यस ना? 415 पार्ट ऑफ अ बुक मतलब 40 अनरीडेड बुक, अनरीडेड पेजेस। 40 पेजेस रीड नहीं किए, ऐसा ही दिया है ना बुक में। तो फिर एक बुक का क्या होगा? 40/1 जितने पेजेस रह गए हैं उसके बाद में 4/15 यहाँ पर डिवाइड में आएगा। हमें पता है कि भाई फर्स्ट फ्रैक्शन क्या होता है डिवीजन में? एज इट इज हम लिखते हैं, और जो भी सेकंड फ्रैक्शन होता है उसका क्या करते हैं हम? रेसिप्रोकल। 4/15 है तो फिर क्या करोगे? 15/4। अब हमें दूसरा रूल भी पता है कि भाई क्या करोगे? पहले क्रॉस में कैंसिल करोगे, जिससे क्या होगा? आपका सिंप्लीफिकेशन लास्ट के स्टेप में करना रह जाएगा। अब देखो 4 और 40 के टेबल में कोई कॉमन है? 4 के टेबल में 40 आता है, या आता है 4 के टेबल में 40? हाँ। Does it give? Right? And what value? 4 1 का 4, 4 10 का 40। यहाँ पर 15 and 1 का कुछ नहीं हो सकता, तो फिर टेक इट एज इट इज एंड 10/1 आएगा इंटू 15/1 आया। अब चलो मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हो आप? या मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हो? डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन। 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 10 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 1, मतलब क्या आ जाएगा? 10 इंटू 15 मतलब 150 डिवाइडेड बाय 1। हमें पता है किसी भी टेबल, किसी भी नंबर के नीचे जब 1 आता है तब क्या होता है? ऑलवेज वो नंबर एज इट इज होता है। दैट्स हाउ कितना आया हमारा? 150। मतलब एक बुक में टोटल पेजेस कितने हैं? 150 पेजेस। समझ में आया how we had found it? Yeah. Yes. Can I tell you one more time? Yeah. Can I tell you one more time? Tanvesh, Swara, Shivdesh, Sadhvi, Shivraj, Raghav. Yeah. Chaitanya, Tanvi. Can I tell you one more time? या फिर समझ में आया आपको? Yes, ma'am. Ma'am. या Yes, ma'am. या पहले ये देखो, पहले क्या किया है हमें? एक स्टूडेंट है भाई, एक क्या है? एक स्टूडेंट है। सिंपली देख, एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट ने क्या किया है? एक बुक ली है। ओके, एक बुक ली है स्टूडेंट ने। उसने क्या करा है? 2 दिन उसने रीड किया है। फर्स्टली उसने रीड किया है सैटरडे को। फर्स्टली उसने कितना, कब रीड किया था? सैटरडे। सैटरडे को उसने जो रीड किया वो कितना पार्ट ऑफ बुक था? 4/5 पार्ट ऑफ बुक। ओके। और जो संडे को उसने रीड किया, ऑन संडे को उसने कितना रीड किया? संडे को उसने 1/3 पार्ट ऑफ बुक रीड किया। ओके, ये संडे हो गया, सैटरडे हो गया। तो फिर आपने क्या किया? टोटल उसने बुक कितना रीड किया? टोटल बुक रीड कितना किया है उसने, वो आपने फाइंड किया। कैसे? 2/5 प्लस 1/3 का एडिशन किया, और इसका आंसर आ गया अपना 11/50। करेक्ट, ये आपने फाइंड किया। अब यहाँ पर दिया है कि भाई स्टूडेंट ने रीड इतना किया है और उसका लेफ्ट कितना रह गया है? 40 पेजेस।
राइट। लेफ्ट कितना रह गया है 40 पेजेस। हमें ये पता है कि टोटल बुक रीड करने का अमाउंट उसका क्या है 11/15, लेकिन एक बुक में उसने कितना पार्ट अभी भी छूट गया है उसका 40 पेजेस, मतलब कितना पार्ट छूट गया है वो दैट वी हैव टू फाइंड। ओके, तो फिर क्या करोगे, बुक लेफ्ट टू रीड, बुक लेफ्ट टू रीड। अब बता दो उसने एक ही बुक रीड की है, सैटरडे को भी एक ही बुक रीड की है, संडे को भी एक ही बुक रीड की है, राइट। तो फिर हम क्या करेंगे, उस एक बुक में से जितना पार्ट उसने रीड किया है उसको क्या कर देंगे माइनस। तो फिर हमें पता है कि भाई जिस भी एक कोई भी होल नंबर आएगा, होल नंबर के नीचे अगर कोई नंबर आपको नहीं दिया, यहाँ पर कोई नंबर नहीं दिया, मतलब वो ऑलवेज 1 होता है। जब कोई भी नंबर डिवाइड के नंबर एक ही दिया होता है, सिर्फ न्यूमरेटर दिया होता है, डिनोमिनेटर पार्ट नहीं दिया होता, तब डिनोमिनेटर में ऑलवेज क्या आता है 1 आता है। तो फिर आपको पता है डिनोमिनेटर में 1 आया तो फिर आप क्या करोगे, बटरफ्लाई ट्रिक यूज करोगे, जैसे आपने एडिशन करा है वैसे ही सब्ट्रैक्शन करोगे, और इसका आंसर आपका आ जाता है 4/15 जैसे हमने किया। अब आपको पता चल गया कि भाई बुक जो रीड आपने नहीं करी है उसका अमाउंट 4/15 है, और बुक जो रीड की है उसका अमाउंट 11/15 है, राइट। तब आप क्या करोगे, अब आपको पता है कि 4/15 ऑफ जो टोटल पेजेस है, जो भी टोटल पेजेस है उसमें से 4/15 आपने रीड नहीं करे, मतलब कितना आता है 40 पेजेस। जो 40 पेजेस है वो आपने रीड नहीं किया। अब 4/15 ऑफ टोटल पेजेस मतलब जो भी टोटल पेजेस आएंगे क्या होता है 40 पेजेस को डिवाइड करेगा 4/15। जो यहाँ पर 4/15 है वो इस साइड पर जाएगा। हमें पता है जब भी यहाँ पर इस साइड में मल्टीप्लीकेशन होगा, मल्टीप्लीकेशन का उल्टा दूसरी साइड में जाके होगा।